Okay, in this lecture we are discussing the osteoporosis. Osteoporosis is actually the Greek word. Osteo means bone and porosis means pores. A skeletal condition characterized by the porous nature of bone is known as osteoporosis. Okay. Before we really understand the osteoporosis, we must have a clear concept regarding the anatomy of bones. Bone is composed of two bones, outer and inner. Outer bone is also known as hard bone. Inner bone is also known as soft bone. Outer bone is also known as cortex or compact bone. And inner bone is known as spongy bone or trabecular bone. Let's come towards the cortex bone. Cortex bone, in the center of the cortex bone, this is the transverse section of the cortex bone. In the center of the cortex bone, there is the canal. This is the canal in which the nerves and the vessels reside, and this is known as the Haversian canal. It is surrounded by the compact network of the collagen. The collagen involved in this compact network is type 1 collagen, and this compact network is called lamellae. Lamellae is composed of two parts, organic and the inorganic. Organic is collagen 1 and inorganic is calcium hydroxyapatite, mineralized portion. And this structure is known as, this structure means Haversian canal surrounded by lamellae. This is known as the osteon. Osteon. Okay, second one is the soft bone or trabecular bone. You also say that lamellae is surrounded by osteo. No, Haversian canal surrounded by the network of collagen. It is known as the lamellae. Okay? So Haversian canal plus lamellae. This structure is known as the basic building block of cortex bone, and that is osteon. If someone is asking you what is the basic building block of the bone or compact bone, it is the osteon. Osteon is composed of Haversian canal with lamellae. Okay? So coming towards the trabecular bone. Trabecular bone is spongy in its nature, just like that of the sponge और काइट थ्रेड. काइट थ्रेड को जैसे हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं ना, इस तरह स्पंज बोन इस तरह होता है. ठीक है. सो दिस इज स्पेशलाइज्ड फॉर द टेंसाइल ट्रैक्शन. Tensile traction. Okay, why I told you about the spongy nature and the hard nature of the bone. बायोप्सी पे आपको क्या मिलेगा ऑस्टियोपोरोसिस की बायोप्सी पे? थिनिंग ऑफ द कॉर्टेक्स. इसीलिए मैं ये बता रहा था आपको. थिनिंग ऑफ कॉर्टेक्स और लॉस ऑफ ट्रेबिकुलाई इन स्पंजी बोन. मतलब ट्रेबिकुलाई का अमाउंट कम होता जाएगा. पढ़ा है ना. एंड वाइडनिंग ऑफ हेवरियन कैनाल. ट्रायड बायोप्सी पे का आपको ट्रायड मिलेगा. ये इसीलिए मैंने आपको समझाया कॉर्टेक्स एंड कॉम्पैक्ट बोन का. एंड वाइडनिंग ऑफ हेवरियन कैनाल. मतलब सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स इनके खत्म होते जाएंगे तो ये वाइड हो जाएगा. पोरस होता जाएगा ना. सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ऑस्टियोपोरोसिस. व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस इज एक्चुअली decrease in the strength of bone, and bone strength is characterized by mass and quality. ये bone strength डिक्रीज हो जाती है ना. bone strength डिक्रीज हो जाती है. bone strength कम हो जाती है. bone strength is characterized by mass and Density. quality. Quality. इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब ये है कि अगर मास ठीक है लेकिन बोन की क्वालिटी ठीक नहीं है तब भी वो ऑस्टियोपोरोटिक कहलाएगा. अगर क्वालिटी ठीक है लेकिन मास ठीक नहीं है, मतलब उसका वेट कम है, तब भी वो ऑस्टियोपोरोटिक कहलाएगा. सो मास इज कैरेक्टराइज्ड बाय बोन मिनरल डेंसिटी. BMD. Bone mineral density. It is the mass.
लेकिन कॉन्सेप्ट ये होता है कि BMD है जो उसकी है वो कम हो जाए, ये नहीं है। अब क्वालिटी पे आ जाए, कोलेजन जो बन रही है वो सही तरीके से नहीं बन रही। पढ़ा है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, टाइप पेशेंट्स आर आल्सो ऑस्टियोपोरोटिक, उनका मास तो नॉर्मल होता है लेकिन क्वालिटी ठीक नहीं होती। ठीक है, अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस? porous bones. नो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस? Decreasing strength and quality. स्ट्रेंथ बोन कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स, एक ये डेफिनेशन हो गई। अगर किसी भी बोन में फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर आ गया, ये ऑस्टियोपोरोसिस हो गई। अगर फ्रेजिलिटी अभी तक नहीं आई है, अभी तक फ्रेजिलिटी मतलब अभी तक फ्रैक्चर नहीं हुआ है, तो हेयर वी अप्लाई द टी स्कोर, डेक्सास्किन टी स्कोर डालते हैं ना, टी स्कोर आपका इट शुड बी लेस देन और इक्वल -2.5। बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है। तो दो डेफिनेशंस हो गई। ऑस्टियोपोरोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स, इसका मतलब ये भी हो गया अगर किसी को फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर है तो आपने डेक्सास्किन करवाने की जरूरत नहीं है। कोई 65 ईयर ओल्ड लेडी आ रही है आपके पास कोलिस फ्रैक्चर के साथ, उसे कहेंगे आई विल ट्रीट यू लेटर, बस फर्स्ट गो फॉर द डेक्सास्किन। उसको ऑस्टियोपोरोसिस है इसीलिए उसको फ्रैक्चर हुआ है, तो इससे इंडिकेशन में आपने वो नहीं करवानी डेक्सास्किन। हाँ, 65 ईयर ओल्ड लेडी आ रही है, अब डेक्सास्किन करवाएं, देखें ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है पेशेंट को। वंस देयर इज द फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर, देयर इज नो नीड फॉर गोइंग द डेक्सास्किन। एक मिनट में रिकैप करेंगे। हाँ, ये क्या बात है? तो फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर क्या है? व्हाट इज फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर? सर बार- ओल्ड एज के अंदर जो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं थ्रू माइनर minor ट्रॉमा trauma ना होने के बराबर हो और फ्रैक्चर हो जाए। नॉर्मली आपका बोन इतना हार्ड होता है कि वो जल्दी आसानी से नहीं टूटता, ठीक है। मतलब नॉर्मली जो आप चलते रहते हैं, आपको फोर्सेस लगते रहते हैं, उनको प्रेशर आता रहता है बोन्स को, लेकिन वो टूटते नहीं। अगर उन प्रेशर्स पे, उन फोर्सेस पे बोन टूट जाए जिसको नॉर्मली नहीं टूटना था, दिस इज नोन एज फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर। अब अगर मेरी हाइट है ना, ये मैं इतनी ऊंचाई से गिर जाऊं तो मेरा कोई बोन नहीं टूटेगा, बिकॉज माय बोन्स आर स्पेशलाइज्ड टू बियर सच टाइप ऑफ द फोर्स। अगर इस ऊंचाई से मैं गिरता हूँ, मैं यहाँ से गिरता हूँ, मेरा बोन टूट जाएगा, फीमर नहीं टूटेगा। यहाँ से मैं गिरता हूँ, नहीं टूटेगा, ठीक है। स्प्रेन आ सकती है, मुझे ट्रॉमा हो सकता है, लेकिन बोन नहीं टूटेगा, वो इतना स्ट्रांग होता है। इस हाइट से वो टूट जाएगा, दिस इज नॉट अ फ्रैक्चर फ्रैक्चर, नहीं चाहिए, ठीक है। जिस फोर्स से उसको नहीं टूटना चाहिए वो टूट जाए, दिस इज नॉट अ फ्रैक्चर फ्रैक्चर, ठीक है। तो कौन से बोन्स नॉर्मली टूटते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में? एक वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम में जब भी फ्रैक्चर आए ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर। और ये खास करके जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन आती है, आउट स्ट्रेन हैंड पे गिर जाती है, तो उसके बाद उनको कोलिस फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। जी सर। Neck of femur. नेक ऑफ फीमर। नेक ऑफ फीमर कहाँ गई? रेडियस से यार। आप नहीं, और causes। आप और causes पूछ सकते हैं ना। और कॉजेस पूछा, ये कोलिस फ्रैक्चर इज द एक्चुअली फ्रैक्चर ऑफ द लोअर हेड ऑफ द रेडियस। इसमें स्टेरॉइड प्रोसेस ऑफ बनना इज नेवर हो सकता है। दिस इज आल्सो द ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर। रिब्स का फ्रैक्चर भी हो सकता है, एंड नेक ऑफ द फीमर, इसका फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर। Okay, now we are going to discuss the pathogenesis of osteoporosis. इसको स्टॉप करते हैं दूसरे